So in the last lecture, we had talked about money multiplier. We had talked about aggregate demand. Why aggregate demand is important in the Keynesian model, right? When we are, so in the classical model, they had said, you just produce and everything will be taken care of. So when you produce, you're going to give income to the four factors of production according to how much they've contributed. Then they will go back to the market and they're going to consume. So your cycle will keep continuing. So more important aspect of this thing to go on properly is the supply side. Keynes, on the other hand, had said that aggregate demand matters more. It is coming from four sectors. So we have consumption plus investment by the private players plus government expenditure plus net exports. Net exports is exports minus imports. Okay. This is rather an identity. So this is not just an equation. This is called as national income identity. So aggregate demand is coming from these four things. Okay. So C plus I plus G plus NX. Now Keynes had said that see, even if you produce, this is not, we are not sure that the aggregate demand or demand would be forthcoming. So taking the example of the recent pandemic. So when we had the pandemic, the onset of the pandemic, we didn't know that, the economy would see such a setback and everything would stop, everyone will have to stay back at home. So prior to that, everything was going on normally. We had got our income, we had the production in place, but the moment such a situation happened, we had stopped demanding or we had curbed our demands, right? So people were not consuming as much as they were consuming earlier. People were not investing as much as they were investing earlier. So aggregate demand was not so much that it can cover the total output. So in that situation, output was more than the aggregate demand. And what happens in such a situation is the unplanned investment more or less in such a case. Unplanned inventory investment is more or less, it's more. We had taken the example of a mother in the last class that if she produces more food, if she makes more food and there are less number of people who are there to eat, she'll not throw away the food. Whatever can be retained, she'll try to retain that food. It is going to be an unplanned inventory investment. So unplanned inventory investment in this case is going to be positive. Now when the mother knows that there is some food in stock, she is not going to produce so much food next time because she already knows that there is so much food. Maybe demand is not forthcoming, she is going to produce less. So the output would reduce and ultimately it will become equal to aggregate demand. But if there is a situation where she produces less and more number of people come, if this is the situation, she'll have to take away things from her inventory, let's say the refrigerator, and here unplanned inventory investment would be negative. It would be an unplanned inventory disinvestment. She had produced food thinking that the aggregate demand would be this much. When the time comes, it so happens that the aggregate demand is greater than income. So it's an unplanned inventory disinvestment. Okay. There would be equilibrium only when aggregate demand and income are equal to each other, which may not always be the case. On the other hand, the classical system that we had talked about, they had said that economy will always be in a full employment level of equilibrium. All those people who are willing to work at that particular wage rate, whatever wage rate is going on, all those people who are willing to work, they are getting work. Not all the people are getting work. Only those people who are willing to work at that particular wage rate would be willing to, those who are willing to get work at that particular wage rate will get the work. Uske correspondingly, you will produce that product output, and then accordingly, you will have that entire aggregate. So the demand would be forthcoming according to how much production has taken place. And of course, you are rational enough to understand what to produce, how to produce, and for whom to produce. So these things
would take care कि जिन लोगों को आपने इनकम दिया है वही लोग आके डिमांड कर रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है. So these things will be taken care of in the economy. And if there is any glitch, everything will be settled by the change in the prices. So if the demand is less, prices would reduce. If the demand is more, prices would increase, and ultimately you will come back to the equilibrium level. Here on the other hand, this may or this may not be a full employment level of equilibrium. You're not sure whether whatever aggregate demand you have, that is ensuring that all the people who are willing to work are getting work at a particular wage rate. So this may or may not be full employment level of equilibrium. Classicals, on the other hand, had said that the economy would rarely deviate from a full employment level of equilibrium. Here, this is not the situation. Okay, so this is aggregate demand becoming equal to income. Then what we had done, we had tried to find the level of aggregate demand and level of equilibrium in the economy. So aggregate demand is C plus I plus G plus NX. For starters, we have taken just a two-sector economy, and now we have expanded our consumption function. We had introduced a form for the consumption function. So consumption is given by C bar plus Cy. C bar is your autonomous level of consumption. No matter what your income is, this is the amount, this is the level that you are going to consume anyway. And this Cy is that part of your income which you consume when your income, it is that part of the consumption which you consume when your income increases. Okay, so C bar plus Cy, this is called as marginal propensity to consume. How does your consumption change when income increases? So it is delta C by delta Y. When I take 1 unit increase in income, when change in income is 1 unit, how much is your consumption changing? Here we are making a very, very important assumption that this change in consumption is going to be less than the change in income. So if your income is increasing by 1, so it can be 1 crore, it can be 1000, it can be anything. So 1 unit. If your income is changing by 1 unit, your consumption is, let's say, changing by 0.7 units, or it's changing by 0.8 units, or 0.1 or 0.3. Accordingly, your marginal propensity would be decided. Okay? Sorry? Exactly. Here we are making an assumption that it is going to be less. So this is the assumption that we are making. Why do we make that assumption? Just hold that thought and we'll come back to it. Okay. So now what happens? So we are going to take both the cases. What happens if it's 1 and what happens if it's greater than 1? And what happens if it's 0? Okay. So we look at all the three cases. What happens if it's 1? What happens if it's greater than 1? And what happens if it's 0? What do we mean by a 0 MPC? When your income is increasing, you're not changing your consumption at all. So whatever your C bar is, it remains as it is. You're not changing it. You're not changing your consumption according to your income. C bar, this C greater than 1 means when your income increases, आप उससे ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हो. अगर आपकी इनकम 1 रुपये से इंक्रीज हो रही है तो आप लेट से 5 रुपये का कंजम्पशन कर रहे हो. मे बी आप इतना खुश हो गए कि आपने बाहर से बोरो करा और आपने कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दिया. ऐसा कुछ हो सकता है. और C इक्वल टू 1 का मतलब है आपने जितना कंज्यूम, आपका जितना इनकम आया आप वो एज इट इज कंज्यूम कर रहे हो. You're not saving anything, right? So we are going to see all the three cases. What happens? But here what we do in order to make this model more realistic, this is the assumption that we make. Okay? So we are going to see what happens in all the cases. Okay. Then what we had done, we had tried to solve this model. So aggregate demand is equal to C plus I. This is what we've assumed as of now. This is just a two-sector economy.
This is an identity. This will always hold true if there is no government and net exports. Okay. The equilibrium would be established where this aggregate demand is equal to income, and now we are going to solve the equilibrium level of income. So we have Y equal to, what was the consumption function? It was C bar plus Cy, and here at the moment we have assumed that income, this investment is also autonomous. It is not changing by any other case. Whatever investment you have to make in an economy, you are just making that. So it is I bar. Okay. Whenever you have a bar over any variable, it means that this particular level is not changing, or it's not changing based on the variables in this model. वो exogenously decide हो रहा है. प्राइवेट प्लेयर्स ने सोचा कि हमको इतना इन्वेस्टमेंट करना ही है, नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ इनकम इज देयर इन द इकोनॉमी. इट इज ऑटोनॉमस, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, इट इज exogenously given. Okay, so this is C bar, this is I bar. This part of the aggregate demand is directly related with income. तो अगर आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है तो आपका ये वाला पार्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड C टाइम्स से इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज योर CY. सो अब हमने क्या किया, वी कलेक्ट ऑल द एक्सोजेनस वेरिएबल्स. सो C बार एंड I बार, इसको अलग अलग लिखने से अच्छा हम इसको A बार लिख देते हैं. वे नाउ A बार इज C बार प्लस I बार प्लस CY equal to Y. And now I want to solve for my equilibrium level of income. Income यहाँ पर भी आ रहा है, income यहाँ पे भी आ रहा है. I want to solve for income, so I will take this to the left hand side and solve for income. What will I get? I will get 1 minus C by equal to A bar, which means equilibrium level of income is A bar upon 1 minus C. Okay, this is what we had done in the last class. This derivation, अभी हम इस मॉडल को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेंगे. अब हम क्या क्या करेंगे, अब हम इस मॉडल के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लाएंगे और हम इस मॉडल के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे. जब मैं गवर्नमेंट को इंक्लूड करूंगी तो गवर्नमेंट दो काम करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और गवर्नमेंट टैक्स लेवी करती है. तो जब मैं टैक्स को इंक्लूड करूंगी तो वो वाला पार्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये दो चीजें आएंगी इस इकोनॉमी के अंदर. एंड हम थर्ड लास्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, हम इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन को भी एक्सपैंड करेंगे. अब हम इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इंटरेस्ट रेट का फंक्शन बनाएंगे और फिर इस मॉडल को सॉल्व करके देखेंगे. ओके, बट ये जो भी हम लेयर्स इसमें ऐड करें, ये बेसिक डेरिवेशन सेम रहेगा. क्या बेसिक डेरिवेशन है हमारा, सारे ऑटोनॉमस पार्ट्स को कलेक्ट करके हमने उसको A बार नाम दे दिया. तो आपको बार बार सारे ऑटोनॉमस पार्ट्स लिखने नहीं पड़ेंगे. फिर आपका कुछ पार्ट होगा जो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होगा, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाओगे, इनकम वाले को कलेक्ट करके बाकी सबको ब्रैकेट में डालोगे एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड करोगे. तो ये वाले जो स्टेप्स हैं, नो मैटर हाउ वी मेक दिस इक्वेशन कॉम्प्लेक्स, ये स्टेप्स कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम IS को समझने वाले हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर आपको ये स्टेप्स क्लियर हो. ओके, तो अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में बस क्या किया था, आई विल जस्ट क्विकली रिपीट. हम लोगों ने इस पूरे मॉडल को हमने इस मॉडल को प्लॉट किया था. हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन अब क्या बना, A बार प्लस CY. इक्विलिब्रियम कब आएगा इकोनॉमी के अंदर, जब ये एग्रीगेट डिमांड इनकम के इक्वल होगा. और एग्रीगेट डिमांड एज यू कैन सी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम. सो A बार हमारा कांस्टेंट है एंड C स्लोप है और Y इनकम, राइट. अब हम इस फंक्शन को जब प्लॉट करेंगे, सो वी हैव इनकम ऑन द एक्स एक्सिस and aggregate demand on the y-axis. When income is 0, my aggregate demand is A bar. So my function starts from here. Now this marginal propensity to consume, we had made an assumption, this is the slope.
for this model. What assumption did we make? That this C is between 0 and 1. The slope is between 0 and 1. That means हमारा 45 डिग्री लाइन अगर हम कोई भी प्लॉट करते हैं वो थोड़ा ऐसा दिखाई देगा, बट एक लाइन जिसका स्लोप 1 से कम है वो इस लाइन से फ्लैट होगी, तो वो वाला लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होगा. कोई लाइन जिसका स्लोप 1 से ज्यादा होगा वो वाला लाइन इसके रिस्पेक्ट में स्टीप होगा, तो वो लाइन ऐसे प्लॉट होगा. ओके, सो दिस फॉर दिस लाइन द स्लोप इज 1. फॉर दिस लाइन द स्लोप इज बिटवीन 0 and 1. And for this line the slope is greater than 1. Okay? अगर किसी लाइन का स्लोप कम है तो वो फ्लैट होगा, किसी लाइन का स्लोप अगर ज्यादा है तो वो स्टीप होगा. एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? Whatever line you have, you go one step ahead and then you try to see आपको वापस इस लाइन पर आने के लिए कितना मूवमेंट चाहिए, वो हमारा स्लोप होता है. So if I have a steep line and I go one step ahead, to come back on this line, I will have to move a lot. What is slope? Slope is delta y by delta x. तो अगर आपका delta x 1 यूनिट है तो आपका स्लोप क्या होगा? delta y. Versus let's take a flatter line. Now when you move one step ahead and you want to come back on this function, how much units you have to move? It's lesser as compared to this much. तो इस लाइन का स्लोप कम है और इस लाइन का स्लोप ज्यादा है. ओके, सो we are going to plot this function. Now इक्विलिब्रियम, पहले हम इक्विलिब्रियम का अपना स्टेट सेट कर लेते हैं. इक्विलिब्रियम इस मॉडल में कब आएगा? जब इनकम और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होंगे. यहाँ पर इनकम का स्पेस है, यहाँ पे हमने इनकम प्लॉट करा है और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का स्पेस है. इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे. तो वी जस्ट मेक अ 45 डिग्री लाइन, एंड 45 डिग्री लाइन का मतलब क्या है? अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा. राइट, सो वी मेक अ 45 डिग्री लाइन. तो इस 45 डिग्री लाइन पर एवरीवेयर इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड आर इक्वल टू ईच अदर. तो इक्विलिब्रियम इस पूरे स्पेस में सिर्फ इस लाइन के ऊपर लाई करेगा. कहां पर होगा अल्टीमेटली वो मुझे नहीं मालूम, बट इक्विलिब्रियम सिर्फ इस लाइन के ऊपर आ सकता है. अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा. इक्विलिब्रियम कौन डिसाइड करेगा? एग्रीगेट डिमांड. दिस इज व्हाट कीन्स हैड सेड. क्लासिकल्स ने बोला था दैट इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय आउटपुट. Keynes had said equilibrium will be decided by aggregate demand. The level of aggregate demand will tell me how much income and output is going to be there. Now, aggregate demand function is what? It is A bar plus Cy. So, when income is 0, aggregate demand is A bar. So, the function is starting from here. And now the slope is C, which is between 0 and 1, which is going to be a flatter line. तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है ए बार प्लस सी वाई. तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम एक दूसरे के इक्वल हो गए. सो दिस इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन द इकोनॉमी. तो ये डायग्रामेटिकली यहाँ पर आ रहा है एंड न्यूमेरिकली हमने क्या वैल्यू निकाला था? y स्टार वॉज इक्वल टू ए बार upon 1 minus c. Now let's take those cases. What happens if c is equal to 1? What happens if c is greater than 1? And what happens if c is 0? Now if c, अब marginal propensity to consume 0 और 1 के बीच में है. That so therefore this line is flatter as compared to this line. This line has a slope of 1. This line has a slope of less than 1. Now what happens if the line is sloped 1? तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे दोनों.
If the two lines become parallel, will they ever intersect? They might intersect at infinity, but they will not intersect in this diagram at least, right? तो अगर marginal propensity to consume 1 है, तो आपकी इकोनॉमी कभी इक्विलिब्रियम में ही नहीं आएगी. Therefore, we make this assumption of C between 0 and 1. अगर marginal propensity to consume 0 है, तो आपका सिर्फ aggregate demand यहाँ पर होगा, तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा इकोनॉमी के अंदर. और अगर marginal propensity to consume 1 से ज्यादा है, तो ये वाला लाइन डाइवर्ज कर जाएगा, तो भी इक्विलिब्रियम कभी एस्टैब्लिश नहीं होगा. सो दिस assumption of marginal propensity to consume between 0 and 1 is a very important assumption. Okay, and it also aligns with what we will expect people. How should people behave? If they are consuming more than what their income is, the economy will never be in a stable state. It is going to be a very haphazard situation. It would be like a Ponzi scheme. एक से पैसा ले रहे हैं दूसरे को दे रहे हैं, एक से पैसा ले रहे हैं दूसरे को दे रहे हैं, तो वो इकोनॉमी का भी सस्टेन नहीं करेगा. So when your income increases, you save some portion of it and you consume the rest. But आप जितना ज्यादा consume करोगे उतना better है. क्यों? क्योंकि circular flow of income. One person's income is one person's expenditure is other person's income. तो अगर मैं consume ज्यादा कर रही हूँ तो किसी और को वो पैसा मिलेगा. जब उसको वो पैसा मिलेगा तो उसकी इनकम इंक्रीज हुई, उसमें से अब वो कुछ पोर्शन रखेगा एंड कुछ पोर्शन कंज्यूम करेगा, तो वो किसी और की इनकम बन गई. अब उसमें से वो कुछ परसेंट सेव करेगा और कुछ परसेंट कंज्यूम करेगा, तो ये किसी और की इनकम बन गई. तो एक फ्लो सेट हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर. इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट. दिस इज व्हाट वी हैड सीन इन द लास्ट क्लास आल्सो. So now what happens if some part of the aggregate demand is changing? Okay, so this is my aggregate demand function. This is A bar. This is my aggregate demand function and this is y equal to AD line. अब अगर मेरा aggregate demand क्या था? A bar plus CY. अगर मेरे ऑटोनॉमस लेवल में कुछ चेंज आ रहा है तो उसके अंदर दो पोर्शंस थे, सी बार एंड आई बार. अगर लेट्स से ऑल द पीपल टुगेदर, द इन्वेस्टर्स, दे ट्राई टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी फ्रॉम I1 to I2, तो मेरा ए बार वाला जो पोर्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो नाउ इट विल लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम हियर. नाउ व्हेन इट इंक्रीजेस, marginal propensity to consume has not changed, it has remained same. So there is going to be a rightward shift in my curve. And in the last lecture we had seen that this level of income, so now my income increases by this much for this much increase in aggregate demand. And we had seen, you can go back to the last lecture, the video is there, you can see, I'm not repeating that point here. We had seen that how this increase in income is greater than the increase in A bar. From here, we had seen that there is a multiplier effect. And from where does this multiplier effect come? This multiplier effect is coming because one person's expenditure is other person's income. अगर मैंने 1000 रुपए इन्फ्यूज करे इकोनॉमी के अंदर, वो 1000 रुपए मुझे मिले, मैं उस 1000 रुपए में से कुछ पोर्शन सेव करूंगी, बाकी का पोर्शन कंज्यूम करूंगी. लेट्स से मैंने 900 रुपीज कंज्यूम करे, 100 रुपीज सेव कर दिए, तो जब मैं वो पैसा कंज्यूम करूंगी, आई गिव दिस मनी टू यू. नाउ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 900 रुपीज. नाउ इट इज इनकम फॉर हिम. when he gets this increase in income, वो कुछ portion save करेगा और कुछ portion consume करेगा. So let's say he also saves 100 rupees. Just for simplicity, we are taking this example. He is also saving 100 rupees. So he is spending 800 rupees now. 800 rupees become your income. You also save 100 rupees and you spend 700. So that 700 becomes your income. You save 100 and you spend 600, so it becomes your income.
You save 100, it becomes your income. तो अब 1000 रुपए जो मैंने खर्च करा इकोनॉमी के अंदर, जो पहला आया मेरे पास, उससे मैंने कितने सारे लोगों का इनकम और आउटपुट जनरेट करा दिया. जब आपको प्रोडक्शन करना होगा तो आपको लोगों से भी कुछ सामान लेना पड़ेगा. तो एक इकोनॉमी के अंदर एक फ्लो सेट हो जाएगा, एंड दैट फ्लो विल लीड टू अ मल्टीप्लायर इफेक्ट. तो जो इनिशियल 100 रुपीज या 9000 रुपीज का जो इंक्रीज था, दैट लीड्स टू लेट्स से 5000 रुपीज का इनकम. क्योंकि मेरा इनकम बना 1000 का, आपका बना था 900 का, फिर आपका बना था 800 का, फिर आपका 700 का, फिर आपका 600 का, फिर आपका 500 का. इन सारे इनकम्स को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये चेंज इन इनकम है, हर लेवल का चेंज इन इनकम, वो सम ऑफ इनकम जो वो चेंज हुआ है वो ज्यादा होगा हमारे इनिशियल उसके साथ. जो हमारा इनिशियल फ्लो था इकोनॉमी के अंदर, change in income would be more than that. So this is called as a multiplier effect. Go back to the last video to understand why this change in income would be more than this change in aggregate demand, the A bar portion of the aggregate demand. Okay, just look at the video. Last video is there on YouTube. Now let's try to find this thing in the equation. अब हमारे पास न्यूमेरिकली वो टर्म क्या होता है, अब हम वो समझते हैं. मेरा एग्रीगेट डिमांड पहले कितना था, ए बार प्लस सी बाय. अब मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज नहीं करा, इनकम में कुछ ऐसा चेंज नहीं करा, मैंने ए बार पोर्शन में थोड़ा सा चेंज लेकर आया. तो पहले आई बार अगर 10 था, अब आई बार 40 है, तो वो 30 रुपीज एक्स्ट्रा मैंने इकोनॉमी के अंदर इन्फ्यूज करे. तो मेरा एग्रीगेट डिमांड टोटल कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट लेवल, इट इज गोइंग टू बी A2 bar plus C by. Now I want to understand what is my change in income because of these things. So इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का आपको याद है फॉर्मूला, हम लोगों ने निकाला था. सो Y1 स्टार was equal to A1 bar upon 1 minus C, and इस वाले सिचुएशन के अंदर Y2 star would be equal to A2 bar upon 1 minus C. ओके, ये मैंने डायरेक्टली निकाल दिया. दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. हाउ डू यू फाइंड इट, आप इसको इनकम से इक्वेट करोगे एंड यू विल फाइंड दिस इनकम. आप इसको फिर से इनकम से इक्वेट करोगे एंड यू विल फाइंड दिस Y2 star. ओके, now what is the change in Y2 star? What is the change in equilibrium level of income? It will be given by Y2 star minus Y1 star, which is A2 bar minus A1 bar upon 1 minus C. Why have we taken denominator as common? Because the denominator has not changed. So it is like 8 by 10 minus 7 by 10. So we can write it as 8 minus 7 by 10 because the denominator was same. Only because of that we can make this thing. So change in income is equal to change in aggregate demand, the change in A bar upon 1 minus C. Now change in Y upon change in A bar is equal to 1 upon 1 minus C. तो 1 यूनिट चेंज इन A बार से कितना चेंज होगा इनकम के अंदर, वो होगा 1 upon 1 minus C. Now let's try to understand. अगर हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 है, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, 1 upon 1 minus 0.7, 1 upon 0.3. 1 upon 0.3 would be equal to 10 by 3 is equal to 3.333. So 3.3, अभी हम इसको 3 ले लेते हैं. Just for now, let's take it 3. तो जब आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन ए इज इक्वल टू 3. अगर आप ये ऑटोनॉमस स्पेंडिंग के अंदर 1 यूनिट का चेंज लेकर आते हो, तो आपके चेंज इन इनकम कितना है, 3. So it is 3 times.
नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करे इकोनॉमी के अंदर, तो आपके इकोनॉमी के अंदर 3 करोड़ रुपए का इफेक्ट आएगा, 3 टाइम्स इफेक्ट आएगा उसका. सो दिस इज माई मल्टीप्लायर इफेक्ट. ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर? इट इज 1/1 माइनस सी. अब अगर मैं 0.7 से हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 0.8 हो जाए, तब कितना इफेक्ट आएगा इकोनॉमी के अंदर? 1/0.2. व्हाट इज 1/0.2? 10/2. 10/2 इज 5. अब अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो आपका मल्टीप्लायर इंक्रीज हो रहा है. तो अब अगर आप इकोनॉमी के अंदर 1 करोड़ रुपए डाल रहे हो, तो आपको कितने का इफेक्ट मिलेगा? 5 करोड़ का. 5 टाइम्स इनकम जनरेट होगा. आपका इनिशियल लेवल जो आपने सेट करा इकोनॉमी के अंदर, उससे 5 टाइम्स आपको फायदा मिला. सो दिस इज माय मल्टीप्लायर इन द नंबर टर्म्स. नाउ व्हाट हैपेंस हियर? तो अब let's go back to those cases. What happens if marginal propensity to consume is equal to 1? What do we mean by MPC 1? जितना मेरे पास इनकम आ रहा है, मैं एज इट इज उतना ही कंज्यूम कर रही हूं. तो हमारा इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 1, 1/0 विच इज इनफाइनाइट. व्हाट डज दैट मीन? अगर मेरे को 1000 रुपए मिले, मैंने पूरे 1000 रुपए खर्च करे, आपका इनकम मैंने 1000 कर दिया, आपने एज इट इज खर्च किया 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, हर लेवल पे 1000 का चेंज आ रहा है. पहले क्या हो रहा था? पहले 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0. एक लेवल पे जाकर वो एग्जॉस्ट हो रहा था, खत्म हो रहा था. इसका एक इनफाइनाइट इफेक्ट नहीं था, फाइनाइट टाइम से आप चेंज कर सकते हो. अब क्या हो रहा है? ऑन द अदर हैंड, हर लेवल पर आप 1000 रुपए बार बार इन्फ्यूज करो, वो खत्म होंगे ही नहीं कभी. तो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या आ रहा है? इनफाइनाइट, which is not something so sensible to talk about. On the other hand, if marginal propensity to consume is greater than 1, then also it becomes a problem, right? So इसलिए we make an assumption that MPC is between 0 and 1. And if it is 0, then what happens? Marginal propensity to consume becomes 1. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब वो फर्स्ट इन्फ्यूजन हुआ मनी का मेरे पास, मैंने कुछ कंज्यूम ही नहीं करा, वो बस मेरे पास आया, बस एक बार इकोनॉमी 1000 रुपए से इंक्रीज होगी, दैट्स इट, खत्म. मैंने क्योंकि आगे उसको इकोनॉमी के अंदर फ्लो करा ही नहीं पैसा. So that money only remains with me, and there's just one time increase, and that's of 1000. There's no multiplier effect. But when I am infusing that money in the system, so from 1000 to 900 to 800 to 700 to 600 to 500, round by round the money is being circulated in the economy, and it is leading to a multiplier effect. Okay. So now let's make this system. So you understood these basic things. You understood the meaning of multiplier. You understood the meaning of the diagram. How do we find these things in the diagram? How do we solve the equation? What is equilibrium level of income? And what is the idea behind this multiplier effect? Now we will do two things. The first thing is we'll try to bring in the government, and अब हम देखेंगे कि system change कैसे हो रहा है. And second, हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को भी थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, और हम IS कर्व जो मैंने बोला था पहले, उसको हम डिराइव करेंगे. So these are the two things that we are going to do now. Okay? Is this clear to everybody? How we solve the equation, those steps would remain the same. That is not going to change. The system would look a little bit more complex, but the steps would remain the same. Okay. So now
Now let's bring in all the four things together. Again, what we are doing is we are keeping exports minus imports exogenous. तो मेरा NX bar constant है. Investment for now is again exogenous, उसको भी हम I bar लिख रहे हैं. Consumption, you know, is what? It is equal to C bar plus CY. एंड अब हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर भी है जो इकोनॉमी के अंदर एक G बार अमाउंट इन्फ्यूज कर रही है. तो अब हमारे कितने एक्सोजेनस वेरिएबल्स हो गए? I बार, G बार, NX बार एंड C बार. ओके. नाउ व्हेन द गवर्नमेंट कम्स इन द पिक्चर, गवर्नमेंट डज टू थिंग्स. वो एक्सपेंडिचर भी करती है बट उनको इनकम भी चाहिए. वो इनकम कहाँ से लेकर आते हैं? टैक्स से. टैक्स किसके ऊपर लेवी होता है? हमारे ऊपर. और वो कहाँ से जाता है? हमारी इनकम में से जाता है. तो अब अगर मेरी इनकम 1000 रुपए की है तो आई कांट कंज्यूम द एंटायर 1000 और मैं अपनी इनकम को 1000 नहीं कंसिडर करूंगी. मैं देखूंगी कि आफ्टर टैक्स मेरी इनकम कितनी बन रही है. अगर मेरी इनकम 1000 है और लेट से उसके ऊपर 100 रुपीज का टैक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा जो इनकम डिस्पोजेबल इनकम है, जिस इनकम को मैं एक्चुअली स्पेंड कर सकती हूँ, वो 900 है. तो मुझे 1000 से मतलब नहीं है क्योंकि 1000 रुपए तो जा रहे हैं ना, वो मेरे लिए यूजफुल ही नहीं है. मे बी वो मेरे को बाद में इफेक्ट करे बाय गवर्नमेंट मेरे लिए ही रोड बनाएगी और चीजें करेगी, वो अलग चीज है. बट आज के डेट में वो इनकम मेरे कंजम्पशन से जा रहा है. तो मेरे लिए मेरे डिस्पोजल पर मेरा इनकम कितना अवेलेबल है? Whatever income I have earned minus the tax that I have to pay on that income. I am not paying tax according to some predetermined level, 100 रुपए 50 रुपए. नो, मैं अपने इनकम के प्रोपोर्शनेटली टैक्स पे करती हूँ. मैं जिस इनकम ब्रैकेट में लाई करी हूँ, हर एक इनकम ब्रैकेट का अपना अपना एक टैक्स रेट होता है. तो 10%, 5%, 30%, 20%, वॉट एवर दैट टैक्स स्लैब इज. तो अभी हम लोगों ने क्या असम्पशन लिया? वी आर नॉट चेंजिंग इट इनटू डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब्स. हमने बस एक सिंपल अमाउंट ले लिया T. T इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो मेरा टैक्स, जिस रेट पर मेरा इनकम टैक्स हो रहा है, T इज दैट रेट. इट मे बी 30%, इट मे बी 20%, इट मे बी 10%, इट मे बी 5%, इट कैन बी एनीथिंग. सो दिस इज द प्रोपोर्शन दैट आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. Again, this T is going to be between 0 and 1. 1 नहीं होगा, जितना इनकम आ रहा है सभी टैक्स कर रहे हैं. 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से नीचे होने का भी कोई सेंस नहीं बनता. तो we assume that it is between 0 and 1. Okay, this tax. Now let us change the system according to this new information. Now my aggregate demand is C bar plus C times of my disposable income plus I bar plus D bar plus NX bar and ये C bar. इसको मैं अभी ही A bar लिख रही हूँ. ठीक है, all the bars I am writing it as constant. तो ये मेरा हो गया A bar. So it is A bar plus C times of my disposable income. How is it different from the previous case? वहां पे A बार में सिर्फ C बार और I बार था. यहाँ पर A बार में 4 कंपोनेंट्स हैं, C बार, I बार, G बार, NX बार. एंड ये मेरा डिस्पोजेबल इनकम है. पहले सिर्फ इनकम था क्योंकि गवर्नमेंट था ही नहीं पिक्चर में. सो दिस बिकम्स A बार प्लस C टाइम्स ऑफ व्हाट इज माय डिस्पोजेबल इनकम? माय इनकम माइनस द टैक्स दैट आई पे आउट ऑफ माय इनकम. So it's Y minus TY, which should be now, in order to find equilibrium, I have to equate this aggregate demand to income. So now what are the steps? All the exogenous parts would remain here. Everything जो income के साथ आ रहा है, वो सबको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे और फिर हम Y कलेक्ट करके बाकी सबको ब्रैकेट में डाल देंगे. और यहाँ पे हमारे पास एक्सोजेनस लेवल होगा एक A बार. वही जो हमने पहले किया था, सेम चीज हम अभी करें. नथिंग हैज चेंज्ड. सो दिस बिकम्स Y माइनस C टाइम्स ऑफ I
अब ये माइनस सी टी वाई है वो यहां पर आके प्लस सी टी वाई हो जाएगा। फाइन, नाउ लेट अस टेक y कॉमन। व्हेन आई टेक y कॉमन, what do I get? 1 minus c plus ct, where c is the marginal propensity to consume and t is the tax rate, और दोनों चीजें 0 और 1 के बीच में। यहां पर हमने लिया माई इनकम माइनस डिस्पोजेबल इनकम, ये मेरा डिस्पोजेबल इनकम है और इसका सी प्रोपोर्शन हमारा एग्रीगेट डिमांड बनेगा। यहां पे देखो, ये हो गया सी वाई माइनस सी टी वाई। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये सी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये सी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये सी वाई माइनस सी टी वाई। जब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए तो वो बन गया वाई, मतलब जो वो इनकम था ऑलरेडी, माइनस सी वाई प्लस सी टी वाई। फिर जब आपने इनकम कॉमन लिया तो आपके पास बनेगा 1 माइनस सी प्लस सी टी। ओके, अब हम इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, पर हम यहाँ पर सॉरी, अब समझ आ गया ना, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू ए बार। अब यहां पे भी सी आ रहा है और यहां पे भी सी आ रहा है, तो मैं यहां पे कॉमन ले रही हूं, सो 1 माइनस ये एज इट इज रहेगा। व्हेन आई टेक सी कॉमन वो हो जाएगा एग्जैक्टली वो हो जाएगा 1 प्लस टी वाई इक्वल टू ए बार। अब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है? ए बार अपॉन 1 माइनस सी, just open this bracket, no wait, when you take, so from these two when you take c common, one second, अच्छा sorry, it is 1 minus c plus ct, so when I write it as 1 minus c 1 minus t, just open this bracket, just open this bracket please everybody. What will it become? 1 minus c times of 1 is c minus c times minus t would be ct. This is what this number is, 1 minus c plus ct. So when I take c common from here, I will get 1 minus c times of 1 minus t, not 1 plus t. आप इस ब्रैकेट को ओपन करके देखिए, this answer should be the same, right? So this is not, this will become 1 minus c 1 minus t. Very important thing to understand how we make the calculations here. So I have just taken c common. When I take c common, I will have 1 here, but जब मैं इसमें से c कॉमन निकालूंगी तो यहां पर माइनस t बचेगा। Why? Because यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, और अब आप इस ब्रैकेट को जब एग्जैक्टली वी कैन से इट लाइक दैट, अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस सी प्लस सी टी। एग्जैक्टली वी कैन से इट लाइक दिस। हम लोगों ने माइनस सी कॉमन निकाला है यहाँ से, rather than taking c common we have taken minus c common. So when I take minus c common, I will have 1 minus c 1 minus t. Okay, now how do we make this calculation? अब यहाँ पर from the same logic हमारा मल्टीप्लायर भी क्या बन जाएगा? 1 upon 1 minus c 1 minus t। हमारा मल्टीप्लायर भी ये बन जाएगा फ्रॉम दैट सेम लॉजिक, को चेंज ही नहीं हुआ सिस्टम के अंदर, बस यहाँ पे हमारे पास एक टैक्स टी वाला पोर्शन वापस आ गया।
अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स ना लगाए, अगर टी 0 हो, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस सी, जो पहले था। बट क्योंकि यहाँ पर एक टैक्स एडिशनल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 माइनस सी इंटू 1 माइनस 1/1 माइनस सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी. Now let's try to make this calculation. Okay, let's say marginal propensity to consume is 0.7 and tax rate is 0.4. आपकी इनकम 40% टैक्स हो रही है और आप अपनी इनकम में से 70% कंज्यूम करते हो। अब आपका मल्टीप्लायर कितना होगा? तो मल्टीप्लायर होगा 1/1 माइनस सी which is 0.7 into 1 minus t. 1 minus t कितना है? 1 minus 0.4 which is 0.6. तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 minus 7 6 are 42. So 0.42. So this would become 1/1 minus 0.42. Usually students make a mistake and they write thing as 1/1 minus c 1 minus t. ये गलत है। हमारा वैल्यू 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी नहीं है, हमारा वैल्यू है 1/1 माइनस c टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी rather than 1 minus c 1 minus t. This is a very common mistake that the students make. ओके तो आपका ये आंसर आएगा 1/1 माइनस 0.42. यू कैन मेक दिस कैलकुलेशन वेरी इजीली. तो ये हमारा मल्टीप्लायर होगा. जस्ट ट्राई टू फाइंड इट. मल्टीप्लायर इस वाले केस में एंड मल्टीप्लायर व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.7 एंड टैक्स रेट इज 0. प्लीज टेल मी द मल्टीप्लायर इन बोथ द केसेस. क्विकली मेक दिस कैलकुलेशन. तो यहाँ पे हमने देखा था हमारा मल्टीप्लायर कितना था 3.33333. तो जिसको हमने 3.3 हमारा मल्टीप्लायर था. अब हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा 1.72. बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स दैट हैज कम इन द इकोनॉमी. अब अगर आप 1 करोड़ रुपए डालोगे इकोनॉमी के अंदर तो वो आपको 1 करोड़ 72 लाख का फायदा देंगे. पहले वो 1 करोड़ आपको ऑलमोस्ट 3 करोड़ का फायदा दे रहे थे. अब क्योंकि हर लेवल पर टैक्स भी हो रहा है, हाउ डज इट इम्पैक्ट? मेरे पास 1000 रुपए आए, उस 1000 रुपए में से मुझे कितने 400 रुपए तो टैक्स ही देना पड़ा, तो मेरा डिस्पोजेबल इनकम 600 का रह गया. उस 600 में से मैं 70% कंज्यूम करूंगी. मैंने 420 रुपए कंज्यूम करे, वो 420 आपका इनकम बना. अब इनकी इनकम में से पहले 40% तो ये टैक्स देंगे और जो बचेगा उसमें से 70% कंज्यूम करेंगे, वो बनेगी आपकी इनकम. फिर अगेन आप उसमें से 40% टैक्स दोगे, जो बचेगा उसको 40% कंज्यूम करोगे, वो आपका इनकम. एंड द सेम वे इट कंटिन्यूज. पहले क्या हो रहा था, पहले टैक्स ही था, तो मेरा इनकम 1000, थोड़ा रखकर बाकी कंजम्पशन, थोड़ा रखकर बाकी कंजम्पशन, थोड़ा रखकर बाकी कंजम्पशन. अब हमारा क्योंकि इनकम पहले टैक्स हो रहा है और उस डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा मल्टीप्लायर कम हो गया एज कंपेयर टू व्हेन देयर वाज नो गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट कमिंग इनटू पिक्चर, द मल्टीप्लायर रिड्यूसेस. बट अगेन यू नो देयर आर शॉर्ट रन इफेक्ट्स एंड लॉन्ग रन इफेक्ट्स. शॉर्ट रन में मे बी इट इज नॉट सो हेल्पफुल, बट जब गवर्नमेंट आएगी पिक्चर में तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स करेगी, डेवलपमेंट करेंगे, तो हमें कहीं और से फायदा होगा. बट अभी वो जो मल्टीप्लायर था वो कम हो इकोनॉमी के अंदर. सो माय इनकम बिकम्स y स्टार इज इक्वल टू a बार अपॉन 1 माइनस c 1 माइनस t. एंड मेरा उसके अकॉर्डिंग जो मेरा मल्टीप्लायर था, जो हमने जैसे पहले निकाला था 1/1 माइनस c, अब मेरा मल्टीप्लायर कितना हो गया 1/1 माइनस c टाइम्स ऑफ 1 माइनस t. इट इज c टाइम्स ऑफ 1 माइनस t. ओके, यहां पर हम एक टर्म देखते हैं जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, वी कॉल इट अल्फा जी। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है तो हमारा मल्टीप्लायर कितना, वो सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो ए बार में हमारे पास 4 चीजें आ रही है, आई बार, सी बार, जी बार, एन एक्स बार। अल्फा जी, मैं आ रही हूँ, आई एम जस्ट कमिंग टू इट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हमारे ए बार में 4 कंपोनेंट्स हैं, आई बार, सी बार, एन एक्स बार, जी बार। हम बात कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर चेंज कर रही है, अगर गवर्नमेंट जी बार इंक्रीज कर रही है तो कितना मल्टीप्लाई कितने लेवल से इकोनॉमी का मल्टीप्लाई और इनकम इफेक्ट आएगा? इट वुड बी 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी। इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है अल्फा जी। इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। इसका बस एक नाम दे दिया, रादर देन राइटिंग 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी बार बार हमने इसको एक नाम दे दिया अल्फा जी। फाइन। अब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, सो y स्टार इज इक्वल टू a बार अल्फा जी। पहले y स्टार कितना था? a बार अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी। अब 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी को मैंने एक स्पेशल नाम दे दिया अल्फा जी। मल्टीप्लायर व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, यही से मल्टीप्लायर आएगा जब इनकम, जब आई बार इंक्रीज होगा, सी बार इंक्रीज होगा या एन एक्स बार इंक्रीज होगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। बट अभी जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर एंड मेक थिंग्स मोर रिप्रेजेंटेबल, हमने क्या बोला, अगर जी बार इंक्रीज होता है तो मेरा इनकम इतने से इंक्रीज होगा, और इसको मैंने एक स्पेशल नाम दे दिया अल्फा जी। ओके, सो माय मल्टीप्लायर बिकम्स 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी। अब हम इसके अंदर एक छोटा सा एडिशन करते हैं। We are going to make all the other things will remain the same. Nothing will change. We are just making one small change. Okay. So let's say your disposable income is what? It is y minus any tax that you pay out of your income. So y minus ty. But government और भी कुछ काम करती है. अब let's take an example. If you get some pocket money from your parents, तो आपका जो इनकम ऐड हो रहा है वो उस आपके वाले इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बस एक ट्रांसफर पेमेंट है फ्रॉम योर पेरेंट्स टू यू। वो वाला इनकम उनके इनकम में कैलकुलेट हो चुका है, तो जब वो पैसा, उसमें से कुछ पैसा आपको देंगे तो वो काउंट नहीं होगा। बट वो वाला पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपके पास पैसा आ गया ना, अब आप कैंटीन में जाके सामान खरीद सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सिमिलरली है, मेरा टोटल इनकम में से मैंने टैक्स हटाया, बट अगर गवर्नमेंट मेरे को कोई ट्रांसफर पेमेंट दे रही है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोविड के टाइम यूएस गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स के अकाउंट में पैसा डाल दिया था, तो एक अच्छा अमाउंट सबके पास आया था। उसको हम नेशनल इनकम में नहीं कैलकुलेट करेंगे बिकॉज इट वाज अ ट्रांसफर पेमेंट जस्ट फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। बट वो पैसा आपके लिए तो इंपॉर्टेंट था ना, क्योंकि आपके डिस्पोजल में आपको मिला था, उस पैसे को आप खर्च कर सकते हो। तो अगर आपकी इनकम है 1000 रुपए, उसमें से 100 रुपए का आपने टैक्स पे कर दिया, बट मैंने आपको 400 रुपए दे दिए, तो आपकी टोटल इनकम जिसको आप खर्च करोगे वो तो 1300 हो जाएगी, राइट? चाहे वो 400 को मैं काउंट ना करूं इकोनॉमी के अंदर, बट आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली है, सो इट इज y minus ty plus any transfer income that I get. So it would be y minus ty plus tr bar. अब हम इसको इंक्लूड करते हैं अपने मॉडल के अंदर, ठीक है? रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम. लेट्स सी हाउ डज द मॉडल लुक लाइक.
So now my aggregate demand would be C bar plus C times of Y minus Ty plus any transfers that I get. Transfers को भी मैंने exogenous term लिया है, Tr bar plus I bar plus D bar plus Nx bar. Let me take all the constant terms together. अब सारे constant terms कौन कौन से constant terms हैं? हम C bar plus CTR bar, CTR bar, क्योंकि मैंने ओपन द ब्रैकेट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CY माइनस CTY प्लस CTR बार. तो CTR बार को मैं कॉमन अपने एक्सोजेनस टर्म में ले लूंगा. अब हमारे एक्सोजेनस टर्म्स कौन कौन से हो गए? C बार प्लस CTR बार प्लस I बार प्लस D बार प्लस NX बार. इन सबको मैं कांस्टेंट ले रही हूँ A बार प्लस C Y minus Ty equal to Y. Now when I take I bring it to this side, do all the all the calculations and all, I will get my Y star as A bar upon 1 minus C 1 minus T. ठीक है, सेम है, nothing has changed. Only what thing has changed, अब मेरे A बार में एक CTR बार वाला टर्म भी है. अब अगर गवर्नमेंट मेरा जो ट्रांसफर पेमेंट है वो इंक्रीज कर दिया. पहले ट्रांसफर पेमेंट था 100 रुपीज, अब ट्रांसफर पेमेंट है 1000 रुपीज. 900 से अगर वो मेरा ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज कर दिए तब मेरा मल्टीप्लायर क्या होगा? उस केस में हमारा मल्टीप्लायर हम कैसे निकालेंगे? मेरा इनकम, चेंज इन इनकम क्या होगा? दिस विल रिमेन द सेम. हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है दोनों साइड पर. न्यूमरेटर में हमारे पास कौन कौन से टर्म्स थे? हमारे ए बार में 5 टर्म्स हैं, सी बार, आई बार, जी बार, एनएक्स बार. ये चेंज नहीं हुए. वो पहले वाले ए बार में और दूसरे वाले ए बार में सेम है, तो वो कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से. सिर्फ क्या बचेगा? सी टी आर 1 बार माइनस सी टी आर 2 बार माइनस सी टी आर 1 बार. तो मेरा मल्टीप्लायर कितना बनेगा? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन द ट्रांसफर पेमेंट, which will be equal to C upon 1 minus C 1 minus T. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक C वाला टर्म आ गया. तो जब ये C वाला टर्म यहाँ पर आया तो अब आप बताइए मेरे को कि आपका मल्टीप्लायर कम होगा या ज्यादा होगा? लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, लेट्स कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल. हमारा C है 0.7 एंड हमारा टैक्स है 0.4. तो जब हम लोगों ने 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया था 1.72, राइट? 1.72. अब आपको निकालना है कि अब आपका मल्टीप्लायर कितना होगा. अब आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना है? 1.72 इंटू 0.7, 1. दो डेसिमल प्लेस बताओ ना बस. 1.2. तो अब आपका मल्टीप्लायर 1.7 से गिरकर 1.2 आ गया. व्हाट डज दिस मीन? अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है तो उनका मल्टीप्लायर था 1.7, बट अगर गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज कर रही है तो उनका मल्टीप्लायर कितना है? 1.2. Why is there a reduction in the multiplier? Why has the multiplier reduced? Can you think of an example? Can you think of a situation? And the explanation. Government expenditure और ये ट्रांसफर पेमेंट है. जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया था तो मल्टीप्लायर था 1.7
बट जब ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज करा तो मल्टीप्लायर आया है 1.2. Why is there a difference? No. It's a very simple situation. Let's try to understand. जब मैंने एक्सपेंडिचर करा तो वो मेरी इनकम बनी. अब उस इनकम में से आफ्टर रिमूविंग टैक्स मैंने कंज्यूम करा. जब मेरे को ट्रांसफर पेमेंट मिला तो मैं अपने लेवल पर कितना कंज्यूम करूंगी? C टाइम्स ऑफ दैट ट्रांसफर पेमेंट. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. जब पिछले वाले एग्जांपल में मेरा इनकम कैसे इंक्रीज हो रहा था? पहले 1000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करी थी उन्होंने, मेरा पूरा इनकम 1000 से इंक्रीज हुआ था. तो मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज था 1000 का. फिर मैंने इसके ऊपर C टाइम्स जो खर्चा करा वो आपका इनकम इंक्रीज हुआ था C टाइम्स ऑफ 1000 से. फिर आपने इसमें से थोड़ा सेव करके आपने जब खर्चा करा इनके ऊपर C टाइम्स ऑफ 1000 का, तो उन्होंने उसका C टाइम्स ऑफ दैट अमाउंट खर्चा करा इनके ऊपर, तो वो हो गया C स्क्वायर 1000. फिर आपने इस इनकम में से C टाइम्स खर्चा किया इनके ऊपर, तो यहाँ पर बन गया C क्यूब 1000. फिर C4000, C5, C10 and this is how it keeps continuing. On the other hand, क्योंकि मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज कितना था? 1000. On the other hand, जब मेरे पास पैसा जस्ट आ गया तो वो तो कोई इनकम का पार्ट ही नहीं है, वो तो हमने नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं लिया ना, वो इंक्रीज तो हुआ, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. मैं अगर उसमें से जो फर्स्ट पार्ट खर्च करूंगी, जो पहला अमाउंट खर्च करूंगी, वो पहला इनकम का पार्ट होगा, वो मैं कितना खर्च करूंगी? C टाइम्स ऑफ 1000. फिर उसका जो आपको मिलेगा फिर वो बनेगा C स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1000, C क्यूब टाइम्स ऑफ 1000, C 4 टाइम्स ऑफ 1000. आप देख रहे हैं यहाँ 1000 फिर C फिर उसके बाद आ रहा है, यहाँ पे ये स्टार्ट ही C से हो रहा है. तो इसका जो मल्टीप्लायर है और इसका जो मल्टीप्लायर है, तो यहाँ पर C टाइम्स ऑफ इसका वाला मल्टीप्लायर आएगा. Therefore हमारा जो मल्टीप्लायर है वो क्या है? C टाइम्स ऑफ 1/1 माइनस C 1 माइनस T. क्योंकि यहाँ पे मेरा पहला वाला इंक्रीज इनकम है वो 1000 का, पर वो जो मुझे 1000 मिला इस केस में वो ट्रांसफर पेमेंट है. तो इसलिए अगर गवर्नमेंट को खर्चा करना ही है तो रादर देन गिविंग पीपल मनी फॉर फ्री कि चलो गरीब लोग हैं उनको पैसा दे दो, रादर देन डूइंग दैट यू शुड रादर हेल्प देम मेकिंग सम काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. उनके ऊपर इन्वेस्ट करो. मे बी उनको एक आपने 1000 रुपए देने हैं तो आप दो तरीके से दे सकते हो. जस्ट गिव देम 1000 रुपीज, कीप इट, वर्सेस आप उनके लिए लेट्स से टी स्टॉल सेट कर दो. वो 1000 रुपए का यूज करके वो दैट टेबल, दैट अम्ब्रेला, वो वेसल, दूध, लेट्स से सब कुछ 1000 में आ गया, लेट्स अज्यूम, ठीक है. दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी, जितना भी 1000 रुपए में सामान आ सकता है, आप वो इन्वेस्टमेंट डालो. दोनों केसेस में आप 1000 रुपए खर्च कर रहे हो. बट ये वाला जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा वो आएगा अल्फा जी. रादर इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड जब आप सिर्फ 1000 रुपए दे दोगे, कीप दिस मनी, फिर वो जब उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा वो आएगा C टाइम्स ऑफ अल्फा जी. नाउ बिकॉज C is between 0 and 1, alpha G is more than C times of alpha G. So government expenditure multiplier is more than government transfer payment multiplier. वो हो जाएगा C times of alpha G और ये है alpha G. This is also a very important question. Had I been the examiner, I would have given this question. Okay, and this is how you can derive the answer. Is it clear to everybody? Okay. Now we are going to expand this discussion and move on to a very, very, very important concept,
which is the ISLM analysis. This is precisely why we have discussed about all these things. We have discussed about, the aggregate demand and income. In the previous lecture, we had also talked about money. If you remember, there is demand of money, there is supply of money. Then we had also seen that Keynes had said that demand of money is coming from three things: precautionary, transactional motive and speculative motive. फिर हम लोगों ने एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ा था मनी का, कि हम लोग मनी क्यों रखना चाहते हैं हमारे पॉकेट के अंदर, क्योंकि वो हमको एक ईज देता है. हम कभी भी चाहे खर्चा कर सकते हैं, हम कभी भी चाहे कमोडिटीज खरीद सकते हैं, बट हम वो पैसा अपने पॉकेट में ना रखकर इन्वेस्ट कब करेंगे, बॉन्ड्स कब खरीदेंगे, एफडी कब करेंगे, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा. अगर मैं पैसे को अपने पॉकेट में रख रही हूं तो वो मुझे कन्वीनियंस दे रहे हैं, बट वो पैसे से पैसा जो मैं बना सकती थी by putting that money in some kind of a bond, I would have earned some interest over that. वो जो मैं पैसा कमा सकती थी, I am let going that. बट अगर वो वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बढ़ जाए, अगर 10% से इंटरेस्ट रेट 30% हो जाए, कि आप 100 रुपए रखो आपको 30 रुपए मिल जाए उसके अगेंस्ट, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो यू विल नॉट कीप द मनी इन योर पॉकेट, यू वुड रादर इन्वेस्ट दैट मनी इन सम बॉन्ड और इन एफडी, राइट. तो ये वाला हमने एक अंडरस्टैंडिंग देखा था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. अब हम दो मार्केट्स बनाएंगे. एक होगा गुड्स मार्केट, जहां पे हम ये सब डिस्कशंस करेंगे, और एक होगा मनी मार्केट, जहां पे हम देखेंगे कि मनी सप्लाई और मनी डिमांड का क्या रिलेशन है. अब ये क्यों कनेक्टेड है, पहले हम लोग ये समझते हैं. अगर मुझे मनी डिमांड, अगर मेरा इनकम इंक्रीज होगा तो मुझे ज्यादा मनी चाहिए अपने पास. ऑफ कोर्स हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए थे. अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, प्रोबेबली अगर मैं खाना ही खा रही हूँ तो मैं बनाना ना खाकर मैं एवोकाडोस खाना स्टार्ट कर दूंगी. मेरी इनकम ज्यादा है, मेरे को सेम ही न्यूट्रिशन मिल रहा है ऑलमोस्ट, बट मैं एक्सपेंसिव चीज के ऊपर खर्च कर सकती हूँ. वो एक्सपेंसिव चीज के ऊपर खर्च करने के लिए मेरे को पैसा होना चाहिए ना मेरे पॉकेट में या फिर बैंक में ओपन में, जो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे कर पाऊँ पैसे को. तो अगर मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को पैसा भी ज्यादा चाहिए. अब अगर मुझे पैसा ज्यादा रखना है अपने पॉकेट में, मनी सप्लाई अगर 500 रुपए की है और लोगों की मनी डिमांड 1000 रुपए की हो गई, तो मिसमैच आ जाएगा. तो मुझे ये वाले मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखना है. उसके लिए मेरे को इंटरेस्ट रेट चेंज करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा. जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, कम या ज्यादा होगा, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा. वाई? बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज C + I + D + NX. इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ तो एग्रीगेट डिमांड बदला, एग्रीगेट डिमांड बदला तो इनकम चेंज हुई, इनकम चेंज हुई तो मनी डिमांड चेंज होगी. इनकम ज्यादा है तो मनी डिमांड ज्यादा है, इनकम कम है तो मनी डिमांड भी कम है. भाई मैं आई डोंट हैव सो मच मनी, मैं बनाना ही खरीदूंगी. अब वहां पे 12 बनानास 80 रुपए के आ जाएंगे, 70-50 रुपए के आ जाएंगे. ऑन दी अदर हैंड एवोकाडोस कितने महंगे आएंगे. तो मुझे ज्यादा पैसा ही नहीं चाहिए अपने पॉकेट में खर्चा करने के लिए, तो मेरी मनी डिमांड उतनी नहीं है. उसके अकॉर्डिंग अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो मिसमैच आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट रेट्स चेंज होंगे, फिर इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, फिर इनकम चेंज होगी, फिर मनी डिमांड चेंज होगी, फिर. तो ये दोनों मार्केट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है, मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट. एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड इज आई वांट टू अंडरस्टैंड दीज टू मार्केट्स and ultimately want to bring these two markets together, and then I will see how the policies of the government will work. Okay, so in today's class we'll try to focus on the IS curve. In the next lecture we will focus on the LM curve and the equilibrium in this entire market. So these 2 points are extremely important. You are going to get majority of the questions from here. This is
the most important thing now also, not just from the perspective of exam, you're just not studying for the exam, right? But to understand what is happening in the economy also, this is a very powerful model. This is the most important model in macro. Later on when you study macro at a higher level, आपके पास बहुत सारे मॉडल्स आ जाते हैं, डायनामिक मॉडल्स आते हैं, स्टोकेस्टिक मॉडल्स आते हैं, बहुत चीजें आती है. वो चीजें कभी कभी हमें समझ नहीं आती. तो मैक्रो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट ये एक ऐसा मॉडल है जो बहुत सिंपल है. अजम्पशंस है इसके अंदर, यस, बट बहुत पावरफुल मॉडल है. अब आप न्यूज़पेपर उठाना, वंस यू अंडरस्टैंड दिस मॉडल, आपको कहीं ना कहीं इस मॉडल का रेलेवेंस नजर आएगा ही. चाहे आप कोविड वाले सिचुएशन में उसको डाल के देखना, चाहे किसी भी उसमें डाल के देखना, आपको कहीं ना कहीं इस मॉडल का जो हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जो भी चीजें हम देखेंगे, वो आएगा ही आएगा आपके लिए. ठीक है, तो अब हम इस मॉडल में दो चीजें हैं, IS एंड LM. तो अभी हम IS से स्टार्ट करते हैं. So let's derive IS. In the next lecture also, what I'll do is I'll start with IS only. जैसे आपको पूरा, अभी तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, अभी टाइम बचा हुआ इसलिए हम IS कर रहे हैं, otherwise I would have done it in the next lecture only. So I'll bring IS and LM together, and then so next lecture would be the entire IS LM analysis. Okay. Today let's just introduce the IS curve and the LM curve introduction, and in the next lecture we will bring everything together. Okay. So let's start with the understanding of IS. इतना सबको समझ आ गया ना, जो भी हम लोगों ने डेरिवेशंस करे, 1/1 minus C 1 minus T, Y for transfer payment it is C times of alpha G, ये सब आपको I hope आप समझ आ गए. Okay. So this is the ISLM analysis where now we are heading to the most important thing, the most relevant thing, and the most powerful concept in macroeconomics. Okay. So IS is what? IS is talking about the investment savings. इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स हमको गुड्स मार्केट के बारे में सजेस्ट करती है. Why? Because हमारा इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड. और हमने एग्रीगेट डिमांड में क्या देखा था? इनकम इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX. पर अभी हम 2 सेक्टर इकोनॉमी दे रहे हैं. तो अब अगर ये कंजम्पशन, ये मेरा इनकम है और ये मेरा आउटपुट है, फॉर देम टू बी इक्वल टू ईच अदर, C दोनों में आ रहा है, Y दोनों में आ रहा है, हमारा सेविंग्स और हमारा इन्वेस्टमेंट सेम होना चाहिए. इसलिए हम इसको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर्व कहते हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स, IS, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स. व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं इकोनॉमी में 1000 रुपए, जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डाला था हमारे पास, अगर मेरे पास इकोनॉमी में 1000 रुपीज, मेरे पास 1000 रुपीज है, मैं वो 1000 रुपीज में से 200 रुपीज सेव करूं और नेक्स्ट राउंड में 800 रुपए आ रहे हैं, तो वो 200 रुपए मैंने इकोनॉमी में से हटा दिए, उसका आउटफ्लो हो गया, बट वो इनकम था मेरा, वो इनकम के अगेंस्ट प्रोडक्शन हो चुका है. मतलब मैंने 1000 रुपए का सामान बनाया, उस 1000 रुपए के सामान में, उसकी वजह से इस 1000 रुपए के सामान में मेरे को 1000 रुपए मिल गए, क्योंकि आई वॉज द ओनली पर्सन हु हैड प्रोड्यूस्ड इट. सो मैं ही लेबर, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, कैपिटल मैं ही सब कुछ हूं अभी. तो मैंने 1000 रुपए का सामान बनाया, तो ये 1000 रुपए, आई ओन दिस 1000, तो ये मेरी इनकम हो गई. अब जब मैं मार्केट में जाऊंगी, मैं ये 1000 रुपीज, ये मेरी इनकम बन गया. पहले प्रोडक्शन हो गया 1000 का, अभी मेरी इनकम बन गया. अब इस इनकम में से मैंने 800 सेव करा और कंज्यूम करा,
और मैंने 200 सेव करा, तो ये कंज्यूम जब मैं करूंगी तो मैं इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 800 रुपए का माल डाल रही हूँ, 800 रुपए का डिमांड बना रही हूँ, बट सामान कितने का बनाए, 2000 रुपीज का, तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा इकोनॉमी के अंदर कभी। तो इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होगा? आई मेक एन अजम्पशन कि मैं जो भी सेविंग्स कर रही हूँ वो मैं अपने घर के तकिए के नीचे नहीं कर रही, या अपने घर में वो एक मिट्टी का आता है ना गुल्लक, जिसके अंदर आप डाल देते हो पैसा, तो जब जरूरत होगा तो आप गुल्लक तोड़ोगे और फिर पैसा निकालोगे। हम वैसे वाले सेविंग्स नहीं करते, हम उस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में डाल रहे हैं, बॉन्ड्स में डाल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हम वर्ड यूज करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग सेविंग्स ही कर रहे हैं बट हमारे हाउस होल्ड लेवल पर इन्वेस्टमेंट, लेट्स कॉल इट दैट। तो हम वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें? फाइनेंशियल मार्केट में, एफडी में, इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में, गोल्ड में, किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट में वो पैसा जा रहा है। फाइनेंशियल मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं? व्हेन यू पुट दैट मनी इन अ फाइनेंशियल सिस्टम, आप वो पैसे को कहीं और, कोई और वो इंसान वो पैसे को बोरो करेगा, तभी हमारे शॉर्ट रन में जितने भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें कम रिटर्न मिलता है, क्योंकि वो पैसा सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आप लेंड कर सकते हो आगे, पर जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है आपको, क्योंकि वो पैसा आप लंबे टाइम के लिए डाल रहे हो। तो कोई इंसान लंबे टाइम में अच्छे से पैसा कमा लेगा, तो वो जब रिटर्न करेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, राइट? तो ये वाला, तो इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा? जो ये 200 रुपए का ऑफसेट हुआ उस फ्लो में से, अल्टीमेटली वो कोई इन्वेस्ट कर रहा है पैसे को, कोई प्राइवेट प्लेयर उसको बोरो करके, तो ये वाला बोरोइंग अगर 200 का ही होगा तो ये तो कंजम्पशन आ गया 800 का। अगर यहां से ये जो 200 रुपए जा रहे थे, अगर वो इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में वो 200 रुपए अगर इन्फ्यूज हो गए सिस्टम के अंदर, तो आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। बट प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये 200 की जगह सिर्फ 100 हुए, तो सामान 1000 का बनाए, डिमांड 900 की है, या फिर ये ज्यादा हुई, सामान 1000 का बना है बट डिमांड 1100 की है, तो प्रॉब्लम आएगा। तो गुड्स मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम में। इसलिए हम गुड्स मार्केट को किस टर्म से रिप्रेजेंट करें? IS। ये हमारा मनी मार्केट है, तो हम यहाँ पे वही सेम चीज करने वाले हैं। हमारे पास गुड्स मार्केट होगा, हमारे पास इनकम है, हमारे पास वो चारों कंपोनेंट्स है, C + I + D + NX, और हम देखेंगे कि हमारा गुड्स मार्केट कब इक्विलिब्रियम में आ रहा है और वो कैसे चीजें चेंज हो रही है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे उसको मनी मार्केट से, जो हमारा LM कर्व है। LM कर्व का डेफिनेशन है लिक्विड या लिक्विडिटी मनी, लिक्विड मनी, लिक्विडिटी मनी, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, LM। तो मनी मार्केट कौन सा वाला थ्योरी डिफाइन करा है? जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मुझे अगर लिक्विड मनी अपना जेब में रखना है तो उसके अकॉर्डिंग इनकम, तो हमारा मनी दो चीजों पे डिपेंड करता है। जो डिमांड फॉर मनी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, लिक्विड, इसलिए हम इसको L से डिनोट करते हैं, लिक्विडिटी, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, हमारी इनकम कितनी है और इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कितना है। तो देयर आर 3 motives for which you want to hold money in your pocket. One is for transactions, second is precautionary, and third is speculative. अगर आपको लगता है इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट्स आज चेंज ना होकर 1 साल के बाद बेटर होंगे, तो आप वो पैसे को अपने पास रखोगे rather than investing that money. बट आपको अगर लगता है कि आज ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, कल कम हो जाएगा, तो आप उस पैसे को आज ही इन्वेस्ट कर दोगे। यू विल पार्ट फ्रॉम दैट लिक्विडिटी, यू विल पार्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट कन्वीनियंस ऑफ जस्ट मेकिंग ट्रांजैक्शंस एनीवेयर एंड एवरीवेयर। स्पेकुलेशन, जैसे स्पेकुलेशन क्या है कि मैं सोच रही हूँ, जैसे अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अपना कुछ माल बेचना है, आपको
आपने सोचा कि यार आज उसका जो दाम है वो 1000 रुपए का है, लेट मी कीप दिस, या तो आप आज ही बेच दो भाई, वॉट एवर यू प्रोड्यूस यू सेल इट टूडे। स्पेक्युलेटिव मोटिव का मतलब है कि यू आर स्मार्ट इनफ टू जज कि अच्छा फ्यूचर में क्या मूवमेंट आने वाला है। अगर आपको लगता है फ्यूचर में इसका डिमांड इंक्रीज होगा तो यू विल कीप दैट थिंग विद योरसेल्फ टुडे, एंड जब उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तब आप उसको सेल करोगे। ऑन द अदर हैंड, इफ बाय एनी चांस वो वाला जो अमाउंट है वो आपको लगे कि यार कल इसके दाम कम हो जाएंगे, कल और लोग प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर तो प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो आज जो आपके पास पहले वाला भी सामान होगा वो आप निकाल दोगे। तो स्पेक्यूलेशन होता है कि आप उसको अंडरस्टैंड करके आइदर यू विल होल्ड द थिंग और यू विल सेल इट ऑफ इन स्पेक्यूलेशन ऑफ इन एक्सपेक्टेशन ऑफ बेटर रिटर्न्स। अगर आपको लगे कि कल रिटर्न्स मिलेंगे तो यू विल कीप दैट थिंग, आज उसकी आप डिमांड बना लोगे अपने लिए और आप उसको कल सेल ऑफ करोगे। अगर आपको लगता है आज ही बेटर है तो आज आप उसकी डिमांड को छोड़ दोगे और आप आज ही उसको सेल ऑफ कर दोगे। तो दैट इज अ स्पेक्युलेटिव मोटिव, जो हम अर्निंग्स के हिसाब से एक मोटिव बना रहे हैं कि हम कितना होल्ड करें। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हमें देखना है कि मेरे को कितना पैसा अपने जेब में रखना है। अब ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है भाई, जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से ट्रांजैक्शंस करोगे, तो वो तो चेंज नहीं होगा किसी वजह से। प्रिकॉशनरी जो आपको पैसे रखना है वो चेंज नहीं होगा। एक स्पेक्युलेटिव मोटिव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिमांड क्यों जनरेट कर रहे हो आज? क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट्स कम है। आप डिमांड क्यों कम कर रहे हो आज? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है। तो ये वो वाला पैसा है जिससे आप और पैसा अर्न करने की एक्सपेक्टेशन में उसको चेंज या कम या ज्यादा करोगे। ये वो वाला डिमांड है मनी का। आज इंटरेस्ट रेट्स कम है तो आपकी डिमांड ऑफ मनी ज्यादा है। आज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आपकी डिमांड ऑफ मनी ज्यादा है, कम है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। आज अगर डिमांड इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आपकी डिमांड ऑफ मनी कम है, बट ट्रांजैक्शंस के लिए जो करना है वो तो करना ही है। ये तीसरा वाला पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है और यही गेम चेंजर है केनेजियन इकोनॉमिक्स में, क्योंकि क्लासिकल्स ने नहीं सोचा था ये चीज। दिस इज द गेम चेंजर, द स्पेक्युलेटिव मोटिव ऑफ डिमांड ऑफ मनी। उन्होंने मेन रीजन रखा था ट्रांजैक्शंस के लिए। तो हमारे मनी के कितने कितने फंक्शंस होते हैं? वन, मनी इज यूज्ड एज अ means of exchange, means of making a transaction. Money is another function of money is that it is used as a measure of measuring things कि भाई ये 50 रुपए का है, ये 10,000 रुपए का है, ये 4,000 रुपए का है, 3,000 रुपए का है, ये 15,000 रुपए का है। तो हम उस मनी को यूज कर रहे हैं अलग अलग चीजों का वैल्यू बताने के लिए। This is another function of money. Yet another function of money is that money is a form in which you are organizing your wealth. Money as a unit of wealth. मेरा wealth आज इतना है, कल उतना होगा, तो वो wealth वाला जो function है money का, वो speculative demand of money generate कर रहा है। Are you understanding this point now? This is a game changer for Keynes. तो अब हमारा मनी डिमांड दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किस किस के ऊपर? इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। और जो मेरा एग्रीगेट डिमांड है वो भी दो चीजों का फंक्शन है। किन किन का? इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। इनकम का तो है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंटरेस्ट रेट का कैसे फंक्शन है? अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है इकोनॉमी के अंदर तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी के अंदर तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी। मनी डिमांड दो चीजों का फंक्शन है, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। अगर इनकम ज्यादा है, इनकम कहां से डिटरमिन हो रही है? एग्रीगेट डिमांड से। इनकम ज्यादा है, मनी डिमांड ज्यादा होगी, तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई का रिलेशन मुझे स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होगा तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड चेंज होगी।
उससे इनकम चेंज हो जाएगी, उस इनकम से मनी डिमांड चेंज हो जाएगी, मनी डिमांड इंटरेस्ट को चेंज करेगी, तो उससे एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाएगा. देयरफॉर दीज टू मार्केट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. तो ये IS is representing the goods market side and LM is representing the money market side. तो IS में अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कब आएगा, when income is equal to aggregate demand, when income is equal to C plus I plus G plus NX. अब हम C G NX इसका तो जो अंडरस्टैंडिंग हमने पिछला देखा है वहां तक आप समझ रहे हो. अब हम यहाँ पर एक एडिशन क्या करेंगे, अब हम इन्वेस्टमेंट को एक फंक्शन बनाएंगे इंटरेस्ट रेट का. इन्वेस्टमेंट कैसा फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का, सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई. आई बार इज दैट ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू विल डू नो मैटर what the situation is, and this part of investment is inversely related with your interest rate. If interest rates are high, investment would be low. If interest rates are low, investments would be high. So this is something that we are going to introduce in this model. तो ये वाले मॉडल में अल्टीमेटली अब हम क्या करेंगे, हम IS कर्व बनाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इक्वेशंस हो जाएंगे आज. तो हम इनकम और इंटरेस्ट रेट के स्पेस में IS कर्व बनाएंगे जहां पे मेरा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा. गुड्स मार्केट कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड और इनकम इक्वल होगा एक दूसरे के. तो यहां से हम वो इनकम और इंटरेस्ट रेट के कॉम्बिनेशंस लेंगे जहां पे मेरा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में हो. LM कर्व में अब हम क्या करेंगे, हमने मनी डिमांड बनाया, मेरा मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर. भाई 1000 रुपए का मनी सप्लाई है, मनी डिमांड अगर 500 रुपए का है तो भी डिसइक्विलिब्रियम है, और अगर 1500 का है तो भी डिसइक्विलिब्रियम है. तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होंगे, तो ये वो इनकम और इंटरेस्ट रेट के कॉम्बिनेशंस बताएगा जिससे आपका गुड्स मार्केट और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा. तो IS पर हर जगह मनी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है, LM पर हर जगह मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे है. जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा जहां पे आपका गुड्स मार्केट और मनी मार्केट साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में होगा. तो इस तरीके से अब वो वाला पॉइंट बहुत क्रूशियल पॉइंट है. अब वो कितने सारे इक्विलिब्रियम्स को डिफाइन कर रहा है, गुड्स मार्केट का भी, मनी मार्केट का भी, एंड टुगेदर उन दोनों का. अब हम देखेंगे उसके बाद कि ऐसे सिचुएशन में अब वो गुड्स मार्केट IS कर्व कैसे ड्रॉ होता है, LM कर्व कैसे ड्रॉ होता है, वो क्या उसका मतलब है, क्या उसका स्लोप है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. फिर हम देखेंगे उसके बाद ऐसे सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये हमारा कर्व बने, ठीक है, ये क्या कर्व्स है अभी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट फॉर नाउ दिस इज द IS कर्व एंड दिस इज योर LM कर्व. ओके, अब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो ये वाला कर्व राइट में शिफ्ट होगा. अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ये वाला कर्व राइट में शिफ्ट होगा तो इनकम में कितना इफेक्ट आएगा, हाउ मच इज दैट चेंज इन इनकम, जहां पे अगेन आपका गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में रहे. तो हम ये वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे. एंड आप लोगों को याद होगा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्राउडिंग आउट. याद है आप लोगों को क्राउडिंग आउट, हमने क्या पढ़ा था क्राउडिंग आउट में, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है. क्लासिकल्स ने क्या बोला था कि अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करोगे उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो आपके इनकम के अंदर कोई चेंज आएगा ही नहीं. आपका इनकम क्या है, C प्लस आई प्लस G प्लस NX. तो अगर G इंक्रीज हुआ
और आई कम हो गया तो इनकम तो एज इट इज रहा। तो ये बोला था क्लासिकल्स ने। हम ये वाली चीज पढ़ेंगे यहां पर कैसे आ रही है। कीन्स ने क्या बोला कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो इनकम मल्टीप्लाई और इफेक्ट के साथ इंक्रीज होगी। वो भी चीज हम यहां से डिराइव कर सकते हैं। और इन दोनों का एक मिडिल ग्राउंड भी हम यहां से डिराइव कर सकते हैं। हम इकोनॉमी के अंदर अजम्पशंस बदलते जाएंगे, क्लासिकल वाला अजम्पशन लेकर आएंगे तो देखेंगे मॉडल कैसे बदल रहा है, केनेजियन वाला अजम्पशन लाएंगे तो देखेंगे मॉडल कैसे बदल रहा है, और मिडिल ग्राउंड क्लासिकल्स और कीन्स दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। अगर मैं उसको एक स्केल में डालूं तो वो 0 और 1 है, बट रियलिटी 0 और 1 के बीच में होती है कहीं। इट्स नॉट ऑलवेज ब्लैक और व्हाइट, इट्स समवेयर ग्रे। तो रियलिटी 0 और 1 के कहीं बीच में आएगी, तो वो वाली रियलिटी भी हम यहां से डिराइव कर सकते हैं। तो ये इतना पावरफुल मॉडल है। क्लासिकल सिर्फ अपने बारे में बताएंगे, केनेजियन सिर्फ अपने बारे में बताएंगे, ये मॉडल अजम्पशंस बदल बदल कर सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉडल। Okay, so let me stop here today. Because it's a very important topic, we will bring both the things, the IS, the LM and the equilibrium together in the next lecture. So please make sure that you are there, because this is the most important thing in what you are going to study. This is the most important. We are going to do it in the next lecture. This is going to be very important. So please be there and we'll study the ISLM model in the next lecture. Okay.